Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. So, as I always ask to you that you all are well or not. So, be healthy, stay fit and fine, and keep yourself environment also healthy, fit and fine. And always I I always strive toward that to work hard, to study properly. So today also I am also say the same thing, that please student focus on your studies, and you all have given your examination, so you now get an idea that which kind of paper was coming and how you have to work. So children, basically we are discussing here these days about the practical. So in the yesterday video, in the previous one video, I told you about the practical, like how you have to do it. I discussed with you the patterns also, like which type of pattern you have to follow, like problem or aim, then introduction. ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी. Now what is the content in that one? This we will discuss today. Okay, content क्या होगा ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं बच्चों टाइटल. टाइटल क्या होगा आपके प्रैक्टिकल का टाइटल. आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल. Everyone, I want everyone to write down it also. Meaningfulness of, I had written of here. Okay, I will write down here so that it is visible to you. Meaningfulness of studying material meaningfulness of studying material meaningfulness of studying material has an impact on learning. ठीक है, meaningfulness of studying material has an impact on learning. So I hope children you all have written this one. So this is your title children. Again I am repeating, क्या लिखेंगे आप टाइटल में? Meaningfulness of studying material has an impact on learning. Children, one more thing, I discuss the practical in the class also, and I make a video also. So with this one, I hope that nothing is confusion will take place. Okay, and I think with this one you will very smoothly write down your practical. So I just hope that with this you will be very smoothly able to conduct your practical. Still, if you feel any doubt, so ask me in the classroom. So the children, the title, in the title में आप क्या लिखेंगे? Again I repeating it. Meaningfulness of studying material has an impact on learning. This is your title. Now, title पेज ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज में जो आपका फर्स्ट है प्रॉब्लम या एम, इसमें आप क्या लिखेंगे? आपका प्रॉब्लम या एम क्या होगा ये मैं बता रही हूँ.
तो योर प्रॉब्लम और एम विल बी टू स्टडी द effect of to study the effect of meaningfulness on learning. हम लोग ये देख रहे हैं कि मीनिंगफुलनेस का लर्निंग पे क्या इफेक्ट है, ये हमारा प्रॉब्लम है. हम लोग ये देख रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मीनिंगफुलनेस ऑन लर्निंग. ठीक है. और कैसे देखेंगे? बाय यूजिंग list of meaningful words, by using list of, I hope it is visible to you all. Your problem or aim is to study the effect of meaningfulness on learning by using list of meaningful words, to nonsense syllables. Nonsense syllable. So children, this is your problem or aim. I give you one second to write it down. तो बच्चों, आपने जाना आपका टाइटल क्या है. आपकी टाइटल है, आपको अभी जस्ट मैंने पता, मीनिंगफुलनेस ऑफ स्टडिंग मटेरियल हैज एन इम्पैक्ट ऑन लर्निंग. उसके जस्ट बाद आप प्रॉब्लम और एम लिखोगे. ठीक है. दिस इज योर प्रॉब्लम और एम. इसमें आप क्या लिख रहे हैं? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मीनिंगफुलनेस ऑन लर्निंग बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स टू नॉनसेंस सिलेबल. ये आपका एम या ये आपकी प्रॉब्लम है. ठीक है. I hope you all have written it down. अब प्रॉब्लम के बाद अब आपको क्या लिखना है? आपका नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन. आपकी नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन. ओके चिल्ड्रन. इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीजें लिखोगे ये इंपॉर्टेंट है जानना. तो ये जान लीजिए आपको क्या क्या चीजें इसमें मेंशन करनी है. इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले व्हाट इज लर्निंग. ठीक है. ये सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज लर्निंग. व्हाट इज लर्निंग आपको भी मालूम है, आप अपने बुक से भी लिख सकते हैं इसे. ठीक है. व्हाट इज लर्निंग. ओके. देन उसके बाद आप लिखोगे फीचर्स ऑफ लर्निंग. क्या रहेगा आपका नेक्स्ट हेडिंग? फीचर्स ऑफ लर्निंग. फीचर्स ऑफ लर्निंग के बाद आप लिखोगे वर्बल लर्निंग.
क्या रहेगा आपका टॉपिक? वर्बल लर्निंग। ओके, वर्बल लर्निंग के बारे में मैटर भी आपको एनसीईआरटी बुक से मिल जाएगा। So from the help of, with the help of NCERT book, you will write down what is learning, what are the features, verbal learning, and some part you will write down from the full marks, which I already told to you in the class. कुछ points हैं, there were 4 points जो आपको full marks में लिखने हैं, जिसमें full marks में at the back में practical portion दिया है और उस part को आपको लिखना है। तो ये आपका introduction हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आता है हाइपोथेसिस। क्या हाइपोथेसिस आप बनाओगे? ठीक है। सो चिल्ड्रन, 1 बाय 1 मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कंफ्यूजन आपको होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन, we had discussed up to the introduction part. I told you already about the title, what the title you will write down in the practical. Then I told you about the after the title what will be your problem or aim, and after the problem or aim you will write down introduction. Okay, problem, aim, and then introduction. In introduction I told you what are the things you will include. Now after the introduction you will write down hypothesis. Okay, what you will write down? Hypothesis. हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस मीन्स द प्रेडिक्शन, अ टेंटेटिव सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज हाइपोथेसिस। अगर हम लोग एक टेंटेटिव सॉल्यूशन देते हैं, एक पॉसिबल सॉल्यूशन देते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक तरह का प्रेडिक्शन आप करते हो। तो आपका प्रॉब्लम ये था, आपका एम प्रैक्टिकल का ये था कि मीनिंगफुल चीज़ों का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है लर्निंग पे। उसी अकॉर्डिंगली आप हाइपोथेसिस भी बनाओगे अपने एक्सपेरिमेंट का कि मीनिंगफुल वर्ड्स टेक अ फ्यूअर नंबर ऑफ ट्रायल इन कंपैरिजन टू दी नॉन मीनिंगफुल वर्ड। यही आपका हाइपोथेसिस रहेगा। सो एवरीवन राइट डाउन द हाइपोथेसिस। व्हाट विल बी योर हाइपोथेसिस? It will take a fewer number of trials. It will take a fewer number of trials to learn meaningful words, as compared to nonsense syllables. As compared to nonsense syllable. Okay children, this is your hypothesis. Please write it down. Again I am dictating it. It will take a fewer number of trial to learn meaningful word as compared to nonsense syllable. I hope you all have written it down. So I am moving forward. After the hypothesis, you will write down
वेरिएबल्स, आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है ये भी आपने पढ़ा है। क्या होता है? अ वेरिएबल इज एन इवेंट और एनीथिंग विच वेरीज। वेरी वर्ड ऐड है ना इसमें, तो वेरिएबल मीन्स जो वेरी करता है, जो चेंज होता है। और हमने ये जाना कि ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होते, ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं। जस्ट लाइक ये जो चॉट है ये वेरिएबल नहीं है, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल है। लाइक इसका कलर, इसके शेप, इसका साइज, ये वेरिएबल है क्योंकि वो चेंज होता है। कलर चेंज होते हैं, साइज चेंज होते हैं, शेप चेंज होते हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा कि ऑब्जेक्ट इज नॉट अ वेरिएबल, ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ वेरिएबल। वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, यूजली 3 टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के ही वेरिएबल डिस्क्राइब करने हैं। 1 IV एंड सेकेंड DV। तो बेसिकली चिल्ड्रन आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आप एक तरह से समझ जाइए, आपको जो मैंने पढ़ाया है एक्सपेरिमेंट मेथड, आपको बस उसी ही रिकॉल करना है। सो एक्सपेरिमेंट मेथड में मैंने आपको यही पढ़ाया कि एक्सपेरिमेंट क्या है, मेथड क्या होता है। वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है दोनों वेरिएबल में। अगर कोई 2 वेरिएबल हैं तो उन दोनों वेरिएबल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट मेथड में हमारा काम होता है IV का इफेक्ट DV पे देखना, क्योंकि IV जो होता है वो कॉज होता है और DV जो होता है वो इफेक्ट होता है। तो वी सी द इफेक्ट ऑफ IV ऑन दी DV। IV यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका इफेक्ट हम लोग किस पे देखते हैं? DV पे। तो एक्सपेरिमेंट मेथड ही यही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक कॉज होता है और जिसका हम लोग इफेक्ट देखते हैं। यहाँ भी जैसे मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं ये आपके IV हैं और इनका इफेक्ट हम लोग किस पे देख रहे हैं? लर्निंग पे। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनकी बेटर लर्निंग हो रही है और जो नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनकी बेटर लर्निंग नहीं हो रही है। तो 1 is IV and 1 is DV। So similarly in variable also, first you write down IV। IV में क्या क्या आएगा? What will be the IV? लिस्ट आएंगे, लिस्ट A और लिस्ट B, ये IV होगा। लिस्ट A नॉनसेंस सिलेबल, ठीक है, ये लिस्ट A है। लिस्ट B क्या है? मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका IV हो गया। IV में 2 लिस्ट आएंगे, लिस्ट ऑफ नॉनसेंस सिलेबल एंड लिस्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। अब इन्हीं का इफेक्ट हम लोग DV पे देखेंगे, ठीक है। DV क्या आएगा? DV क्या होगा? So I hope you all have written it down. So I will describe you the DV. DV बताएं आपको। So children, DV में आप क्या लिखेंगे? DV मैं यहाँ लिख रही हूँ, but in your file you will write down the full form dependent variable. आप पूरा लिखोगे, ठीक है। DV में आप क्या लिखोगे? The number of trials, the number of trials required, the number of trials required to learn, the number of trials required to learn each of 2 lists, each
आपका डीवी होगा। प्लीज नोट इट डाउन। क्या है? द नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू लर्न ईच ऑफ टू लिस्ट, ये डीवी है, क्योंकि उस लिस्ट जो लिस्ट है वो आपका आईवी है और उसी का इफेक्ट हम लोग डीवी पे देखते हैं। तो डीवी क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल, क्योंकि वो इफेक्ट बताएगा। आप ये देखोगे कि मीनिंगफुल वर्ड्स के ट्रायल जो होते हैं वो कम लगेंगे और नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स के ट्रायल आपके ज़्यादा लगेंगे। तो इसीलिए वो जो लिस्ट है, जो ट्रायल्स हैं, वो डीवी हो रहा है। ठीक है, हाइपोथेसिस और वेरिएबल के आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने हाइपोथेसिस वेरिएबल भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आगे बढ़े। आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन। सो चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस और वेरिएबल के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी अबाउट द सब्जेक्ट। अबाउट द सब्जेक्ट। अबाउट द सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके जानने के लिए। तो इसमें आपका आएगा नेम, ठीक है, एज, ओके, जेंडर, ओके, एजुकेशन, टाइप ऑफ फैमिली, मीन्स किस कैसी फैमिली में आपका सब्जेक्ट रहता है, न्यूक्लियर है कि जॉइंट है, टाइप ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ सिबलिंग, कितने भाई बहन हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल आर राइटिंग डाउन। देन नंबर ऑफ सिबलिंग के बाद क्या आएगा? बर्थ ऑर्डर, वो किस ऑर्डर पे उसका बर्थ हुआ है, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन, सो आई एम गोइंग टू इरेज इट। नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, टाइप ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ सिबलिंग, बर्थ ऑर्डर। इट्स ओके। बर्थ ऑर्डर के अलावा भी इसमें बहुत सी चीज़ें और आएंगी अबाउट द सब्जेक्ट में, ठीक है। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी क्या है, ठीक है। रिलीजन, ओके। देन प्लेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, प्लेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्लेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देन आपका रहेगा डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का डेट और टाइम क्या था, डेट एंड टाइम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, okay. So I hope it is clear to you all. After the about the subject, अब आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा your next heading will be materials required.
मटेरियल्स रिक्वायर्ड। इसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज हो रहे हैं? तो सबसे पहले आपका आएगा लिस्ट ए, जिसमें कि क्या है, कंप्राइजिंग ऑफ लिस्ट ए कंप्राइजिंग ऑफ नॉनसेंस सिलेबस। ठीक है, ये आपका सबसे पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है इसमें? लिस्ट बी, ये सेकेंड मटेरियल रिक्वायर्ड है। लिस्ट बी क्या है? कंप्राइजिंग ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, कंप्राइजिंग ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपका मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया। आप मटेरियल रिक्वायर्ड तक कर लोगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिवीजन हो जाए। टाइटल पेज, देन प्रॉब्लम और एम, देन इंट्रोडक्शन, देन हाइपोथेसिस, वेरिएबल एंड अबाउट द सब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, देन मटेरियल रिक्वायर्ड। इसमें और भी चीजें हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी के अलावा। ठीक है, व्हाट विल बी देयर? द लाइक थर्ड आप लिख सकते हो पेपर, पेन, पेंसिल, वॉच, ये सारी चीजें, क्योंकि आपको वॉच की जरूरत इसमें पड़ेगी, क्योंकि आप 10 सेकेंड देखोगे। 10 सेकेंड के लिए आपको कार्ड शो करने होते हैं और 1 मिनट टाइम से आपको उसको देने होते हैं सब्जेक्ट्स को, कि वो लिख सकें। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड आप सभी को समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें आप लोग मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है प्रोसीजर। आपकी प्रोसीजर हेडिंग आप डालोगे, प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर में आपके बहुत सारे सब हेडिंग होंगे, मैंने आपको बताया था, जिसमें कि सबसे पहले आएगा रैपोर्ट फॉर्मेशन। क्या आएगा? रैपोर्ट फॉर्मेशन। रैपोर्ट फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, रैपोर्ट फॉर्मेशन ये आएगा। इसमें क्या क्या चीजें आप लिखोगे? जैसे आप इसमें लिखोगे द सब्जेक्ट वॉज कॉल्ड इन टू द रूम एंड मेड टू फील कंफर्टेबल। सब्जेक्ट को हमने रूम में बुलाया, रूम में साइकोलॉजिकल लैब में बुलाया, साइकोलॉजी रूम में बुलाया, उससे कंफर्टेबल फील कराया। शी वॉज टोल्ड दैट अ वेरी सिंपल एक्टिविटी वुड बी कैरिड आउट एंड देयर वॉज नो नीड टू बी एंशियस। उसको बोला कि आपके साथ बहुत ही सिंपल एक्टिविटी करने वाले हैं हम लोग, और एंशियस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। द सब्जेक्ट वॉज अश्योर्ड दैट द रिजल्ट्स वुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। हम लोग ने सब्जेक्ट को ये भी अश्योर्ड, इस बात की अश्योरेंस दी कि आप जो भी यहाँ करोगे इसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, इसे कोई भी चीज़ें हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रैपोर्ट इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, should I repeat it again? The subject was called to the psychology lab, made them feel comfortable, told that a very simple activity are going to be conducted, don't feel anxious, your results will be kept confidential. रैपोर्ट फॉर्मेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है इंस्ट्रक्शन। ये भी आपका, दिस इज ऑल्सो अ सब हेडिंग, ये भी सब हेडिंग ही है। रैपोर्ट फॉर्मेशन के बाद आप इंस्ट्रक्शन देंगे सब्जेक्ट को, ये भी सब हेडिंग है प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शन आप देंगे? आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे प्रॉपरली कि यू विल बी शोन टू लिस्ट,
आपको 2 लिस्ट दिखाई जाएगी. लिस्ट A has meaningful word and list B will have list A has non-meaningful word and list means basically instruction थोड़ा डिटेल में देना है, जिसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तो यहाँ तक आपके वर्क कंप्लीट होने चाहिए. हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? टाइटल, देन प्रॉब्लम और एम, इंट्रोडक्शन, देन हमने डिस्कस किया हाइपोथेसिस, फिर वेरिएबल लिखेंगे, फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, देन आपका मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके बाद आपका प्रोसीजर रहेगा जिसमें रैपोर्ट फॉर्मेशन तक हम लोग ने पूरा प्रॉपरली डिस्कस कर लिया. सो आई होप दैट अप टू दिस आप लोग अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे, कंडक्शन कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे और राइटिंग पोर्शन में आप लोग एटलीस्ट रैपोर्ट फॉर्मेशन तक अपनी फाइल में कंप्लीट कर लेंगे. So with this I can hope that you all will complete your work. Thank you so much for listening and writing it down, and I will definitely provide you the date, and on that particular date you all will submit me the file. Thank you so much again.